As far as I know, you haven't done anything over the Python right now. Actually, we haven't talked about Python with HR, I think. She told me like you are giving this interview over the Python as well. So that's why I'm just But when she called me, so yeah. she was saying that there's a opening in Python, but I said I'm a fresher and I don't know anything about Python. So she said there are some openings in freshers as well. So I don't think. Yeah, that was okay. But like what about the freshers? Like freshers mean that they have the knowledge of certain kind of environment, like that someone is coming to giving the interview over the PHP. So that means like he would like to go with PHP. Someone is coming with React Native. That means he is one who would like to go with React Native as well. You would like to take some order? No. Okay, it's fine. So like if you are just giving this over the Python, that means you have to be knowledge over the Python as well. That's like the list and everything over there. So I don't believe so like you have knowledge of those. No, I don't have knowledge of Python. That's why. So where you are finding out yourself, like here I am the good. Yes. Actually, I can do mobile development. I really like mobile development, and I can go with that mobile development. But if I need to learn new things, I know problems in that also. Like I have. So you would like to go in mobile development. Yeah. Okay, so like I would think so. Like you should go to prefer in that as well. Yes. Okay. So I don't think so. Like you have dream to be going Python as well. No, actually, I really like data science, so I just started learning some prerequisite for it, like linear and Gemini and all. So in that, I was learning about PyTorch and some libraries. Yeah, but like in Python, you know what? Like we are the Python, we are just creating AI. We are the Python, we are creating the data scientists as well. In the Python, we are doing coding as well. And like Python is like having the like effort to be like replaced to Java as well, because it is like shortened code statements and all. So we can do multiple things with Python. But what you have decided, like if the data scientist, then you are at the wrong place. Because of that, our company is nothing doing in the data scientist. We are doing in the development. So that's the way like you have to decide like where you have to go. It's not that I have to go somewhere. I just like to learn new things. Yeah, but like new things means like and opening the door is even a new thing, because you just learn that here doors are open in the other way. Like in your home, you have the like several like in IT. Like if I get a chance to learn Python, so I will do some hard work and you. That was okay. Like the fresher has to do hard work. Like when I was fresher, I have to do that well. Like currently, I'm working over the 7 to 8 languages. Having the 2 years of experience, like I'm guiding here all of the buddies who even having the 7 to 8 years of experience. Because of that, I'm just doing hard work. I'm just learning the things out of the bond, learning over my house and. But this is not about it, because you haven't cleared about like where you have to go. Like when I just started my journey, I am just being clever about it. Like I should have to go with the HTML, CSS and JavaScript basics. I have learned throughout that. After that, I applied to the PHP. Then I just moved to another company. There I learned Node.js, React.js, AngularJS. So this is the steps what I have followed. Like the motive was to develop new things. Yeah. And begin developing new things from React Native as well, mobile developments, and through Python as well. So you can do from anywhere. Yes. So whatever the language is. So that was the only motive. Yeah, but the motive have to be come from the any language. Because of that, like after 10 days, you realize that you cannot able to do good in the mobile development. What we can do? We can do nothing. Actually, we have guidance. Like I'm a quick learner. I can learn. Everybody is a quick learner in the like segment of us. Like people who are just working over here, like have like fear of like their job infinity. Because of that, every day new developers are coming. Every day ChatGPT and these AI tools are getting smarter than ever. So everybody have to be smart. Everybody have to be like learning scalable and all. Where I can judge you yourself. Because you are not clear with the particular criteria. Here I have to go. Like where you have to go. Like there are so many languages. Even Golang, Highlang. Like I can go with mobile development. You would like to go with mobile development. Yes. That is the thing you have to decide, because if you are going with mobile development, that means that is the particular different segment where you don't have to work over the backend, over the logics. Because logics has been driven by backend people who is writing the APIs and on. Are you familiar with APIs? No. Okay, there was a we are saying application programming interface. That means the data, the logic has been derived by the persons like me. Will send you a URL. On that URL, when you are just calling from your like mobile app, then you will receive something like the data, and you have to show it out that.
Like I can show you, like I don't have to show, like, but like if you are using some apps like Google Play Store, and then where this data is coming from, this is coming from API. That API has a server. So that means you don't have to involve in that like linear algebra and one of the things, because that is not coming in use. Then you have to go with the NPM, then you have to go with the packages, you have to go with Node. If you are going with the Android one, then you have to go with like Kotlin and all, Java. So you are at the wrong place actually. You are not deciding what you have to do, because when I was in your age and like you were in your seat as well. So somebody guide me, like, brother, you have to do like that. And that's my duty. Like somebody is coming, I have to guide him. Because it doesn't matter you are getting a job here or not, because you will not gonna pay. So you will go somewhere and all. Here they will also told you these same things, but don't know like they will guide you and all. Because there are two kinds of company. First company, where the peoples are working for the company. Second company, where are the peoples who working for the peoples. I am the person who is working for the peoples. I know, like, if after 2 years, if you go look backside, looking in the backside, you will realize that I meet to some person named Govind, and he guide me throughout the day, and that is important to me. So I would like to get that name as well. So here in the mobile development, but I don't think so. Like they have to conduct the interview right now. In the mobile development, you can go with React Native, go with Flutter. I am working with React Native and Flutter as well. Okay. Another thing you can go with native Android, native. We have to Swift, Kotlin, Java. In even those, you have to go with Java and Swift, little bit. Okay. In Flutter, we have to go with one languages, Dart. So these are the different environments, and you have to, where you are currently, you have to decide only one. That means if it is React Native, if it is Flutter, if it is Android, if it is Swift. Why? Because if you are going with Flutter, you have to learn Dart. After Dart, you have to learn with Java, Kotlin as well. So that means you are nothing if you are not going with it. If you are going in React Native, you have to be strong in JavaScript. Yeah. And I feel like JavaScript the easiest part. Like learning to the others, like JavaScript easy because the code snippets can be find out easily. So you have to go with JavaScript. That means React Native is in. If you are going with native one, then you are in the wrong company giving this interview, because we are not working with the native ones like Swift and Android as well. So what we have React Native. So would you like to go with React Native? Okay. So this is decided now. Yes. I have to go with React Native and doing development in this. No issues. What do you know about React Native? React Native is a framework. It has some applications of React JS and React, and it is actually we can develop iOS as well as Android apps from React Native. The current version is 0.74, I guess, and in React Native, nowadays React Native is more popular than Android. This is not true. Not it is going beyond the levels. Currently Flutter is popular, very popular. Even the person who knows the React Native is moving to the Flutter. Suppose that I just started learning React Native first. So what I have did, learning Flutter. Why? Because React Native losing its popularity actually. React Native is still not very. It's not very goodly code. And it shows very errors when we were in it. In framework, there are many things like JSON package.json. What is JSON? JSON में आपकी सारी dependency वगैरह और that was the package, not JSON. I would like to know about JSON. Okay, JSON. We are writing something as JSON. What is this? I don't know. Okay. This is package.json. This package.json. There is package.json. What is the difference between those files? Actually, package.json में dependency वगैरह होती है, और जो नीचे वाला होता है उसमें dependencies की भी dependency होती है. Okay. So if I delete this, so what will happen?
अगर ये ऐसी डिलीट करोगे, पैकेज लॉग जेसन, अगर पैकेज लॉग जेसॉन में लिंक कर दोगे तो डिपेंडेंसीज की उसमें दिक्कत आएगी, मतलब इट विल बी हार्ड, मतलब एरर्स आएंगे वो फिर एक होती, चूँकि डिपेंडेंसीज की जो डिपेंडेंसी इसके अंदर स्टोर है वही चली जाएगी, तो फिर वो कैसे वर्क करेगा। मान लो ये दोनों फाइल्स आपके पास में नहीं है किसी पैकेज के अंदर, तब ये दोनों ही फाइल नहीं है, फिर तो नहीं चलेगा। तो अगर मान लो ऐसा कोई कोड है गलती से, मान लो क्या होता है कि इट वॉज समथिंग, हम लोग काम करते फ्रीलांसिंग में है ना, जैसे घर पे मैंने कोई प्रोजेक्ट उठा लिया, मैंने कर लिया, अब क्लाइंट ने मुझे पैसे नहीं दिए, मैंने ये किया 2 फाइल उड़ा दी उसकी, पैकेज जेसन पैकेज नॉट जेसन, तो क्या कभी उसका कोड ही नहीं चलेंगे? नहीं, वैसे तो अपन दूसरी एक फ़ोल्डर बना के उसमें स्टोर कर देते हैं। कैसे हो? तो एक फ़ोल्डर बना के जो भी इधर इसकी जो डेटा था उसको स्टोर कर देंगे, तो अगर ये डेटा चला भी गया तो वो मत रहेगा, वो भी सेफ। मतलब कैसे? देखो आप ये 2 फाइल्स है, अगर आप ये कह रहे हो यही डिपेंडेंसी है और डिपेंडेंसी चली गई तो आपका कोड कैसे चलेंगे? नहीं, फिर तो नहीं चलेगा। तो इसका मतलब तो ये हो गया उसका कोड खराब हो गया। हाँ, पोर्ट ऐसा तो पॉसिबल नहीं ना, अगर मान लो कोई मैनुअली फिर डाल सकते हैं ना। जैसे जोमेटो है, आज मान लो जोमेटो का कोई किसी के पास में पड़ा था, उसने वो 2 फाइल उड़ा दी, तो जोमेटो के इंजीनियर्स क्या करना है फिर? हमें मतलब वहाँ जाके सोचना होगा ना कि एक्चुअल में कैसे चीज़ें काम करती होंगी। मान लो जोमेटो का पोर्ट रिमूव हो गया, किसी ने ये 2 फाइल रिमूव कर दी, पैकेज डॉट जेसन और पैकेज लॉग डॉट जेसन, वॉट ही हैव टू डू नाउ, व्हाट इज़ योर लाइक, जो फ्रेशर लेवल पे चीज़ें होती है ना, वो यही होती है कि हमको ये पता होना चाहिए कि एक्चुअल में फोल्डर स्ट्रक्चर क्या है, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर क्या है, ये फाइल कब काम में आती है, और ये फाइल नहीं होगा तो क्या होगा, ये फाइल है तो क्या हो रहा है। बिकॉज लाइक ब्लैंक माइंड अगर आप इंटरव्यू दोगे, दस मीन्स लाइक दिस इज गोइंग विद द बोर्ड लाइक रॉन्ग इन द बैक टेस्ट। फ्रेशर डजंट मीन लाइक, फ्रेशर का भी एक क्राइटेरिया होता है जहाँ पर हम ये चीज़ मान के चलते हैं कि इवन यू हैव टू बी नॉलेज विद दैट पर्टिकुलर थिंग, कि हाँ मुझे इतना तो पता है, लाइक टिक टैक टॉय गेम है, मान लो मुझे रियल में गेम नहीं आती, मैं गया चैट जीपीटी बोलते हैं टिक टैक टॉय गेम बना दो रियल में, वो मुझे बोर्ड दे देगा, वो कमांड रन करूँगा 2 मिनट में बन जाए, है ना। उसके लिए किसी बंदे को सिखाना मतलब मुझे एक वैल्यूएबल चीज़ नहीं लगती कि हमें किसी बंदे को 6 महीने के लिए भी हायर करें, तो कैसे होगा वो? आपको कहाँ तक नॉलेज है इस चीज़ के लिए? मतलब मैंने इसको सेटअप किया लैपटॉप में, और मतलब जो भी डिफरेंट वीडियो से सीख के जो भी बनाया तो उससे ही किया था मैंने। इफ आई गेट लाइक, ठीक, चांस तो सबको मिलना चाहिए, चांस मिलता भी है सब, बट स्टिल यू हैवंट प्रिपेयर्ड एक्चुअली, आपने कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया जहाँ तक मुझे लगा। आप DSA आप DSA में अच्छे हो? अगर मैं DSA से कुछ पूछूँ, हाँ थोड़ा, तो कौन सी लैंग्वेज में आप DSA करना चाहूँगी? C++। तो सर पायरेट 1 2 3 4, मुझे इसमें से जो वैल्यू सबसे बड़ी है ना वो निकाल के दिखा। कॉटेड है, सॉर्ट आपको करना है? सॉर्ट में करना, मतलब मैं आपको ऐसे समझा दूँ कोड नहीं, कोड पहले मैं सॉर्ट करूँ इसे, फिर ठीक है। आप सॉर्ट करने के लिए कौन सा मेथड काम में लोगे इसको? मतलब इंसर्शन सॉर्ट भी हो सकता है, सिलेक्शन सॉर्ट भी हो सकता है। दोनों में क्या डिफरेंस होता है? इंसर्शन सॉर्ट, इंसर्ट सॉर्ट, बबल सॉर्ट। और बबल सॉर्ट में तो जैसे अपन 1 और 2 को देखेंगे पहले, फिर इसको जैसे 1 2 अगर 1 से बड़ा है, बबल सॉर्ट में जैसे नेबर्स को देखते हैं, जैसे अपन ने 1 और 2 को देखा, फिर 2 और 6 को देखा, मतलब एक रूल देखा है आपने, सही पूरा जो एरे होता है उसकी जितनी वैल्यूज़ होती है उसमें हम 2 का डिवाइड करते हैं, फिर दोनों को अलग अलग सेक्शंस पर डिवाइड करते हैं, फिर एक फाइल में से वैल्यू मिलाते हैं, फिर जिसमें जो बड़ी वैल्यू मिलती है उसमें से दूसरी तरफ करना है, क्योंकि हमने सॉर्ट कर रखा है उसको। हाँ, तो ये कैसे काम करेगा इसमें बबल सॉर्ट? बाइनरी सर्च से करना है क्या? ये बबल सॉर्ट कैसे काम करेगा? बाइनरी सर्च तो हम बाद में लगाए नहीं, बबल सॉर्ट में अपन देखते हैं कि जैसे 1 और 2 में कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, फिर उसको स्वैप कर देंगे। ठीक है, यहाँ से और यहाँ से 1 देखेंगे कौन सा बड़ा, फिर स्वैप कर देंगे। तो उसमें जो पहले राउंड में जो होगा, जो कि जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो राइट साइड शिफ्ट हो जाएगी पहले राउंड में बबल। ठीक है, फिर अपन दूसरे राउंड में सिर्फ ये वाली ही यूज़ करेंगे, मतलब N0 से N-1 है ना, फिर अपन N-2 तक ही होगा, 0 से N-2 तक होगा। क्यों?
क्योंकि ये तो सॉर्ट हो गई है ना, क्योंकि सबसे बड़ी जो थी वो इधर हो गई है, तो ये इससे अपन को कोई लगाना नहीं ना, तो अब ये बची। फिर अपन इसमें बबल जो राउंड 2 जो होगा उसमें पहले देखेंगे ये में कौन सा बड़ा है, फिर शिफ्ट कर देंगे, फिर यहाँ पर वापस से ये राउंड 2 में अपन को लास्ट की 2 वैल्यूज सॉर्टेड हो जाएगी। फिर ऐसे ऐसे जैसे राउंड 1 तो इसमें जैसे 4 है साइज, तो राउंड 3 तक अपनी सारी सॉर्ट हो जाएगी बबल ब्लॉक में। तो बबल सॉर्ट और इंसर्शन सॉर्ट इन दोनों में से कौन सा बेस्ट होता है? इंसर्शन बबल सॉर्ट बेटर। इंसर्शन सॉर्ट में क्या दिक्कत होती है? इंसर्शन सॉर्ट में कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा लगती है। जैसे अपन इंसर्शन सॉर्ट में देख हर वैल्यू को के साथ ही जाते हैं। जैसे 1 को देखे कि 2 3 4 अपन को इन तीनों में करना पड़ेगा, फिर वापस से 2 को भी देखना पड़ेगा, तो इसमें काफ़ी सारी कॉम्प्लेक्सिटी। तो वो तो अपन बबल सॉर्ट में भी कर रहे थे, एक एक वैल्यू को कंपेयर कर रहे थे, फिर आगे मूव ऑन होते जा रहे थे। तो इंसर्शन सॉर्ट में अपन ने नया क्या किया है? मैं इसमें जब वन पोर्ट करेंगे बबल सॉर्ट में, तो मतलब एक वाइल्ड लुक से भी हो जाएगा कि, और जब इंसर्शन में करेंगे तो 2 4 लूप लगेंगे। 2 4 लूप लगाने पे क्या इशू होता है? मतलब n² हो जाएगी टॉप कॉम्प्लेक्सिटी उसकी। n² से क्या इशू आता है? n² से ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा और डेटा भी ज़्यादा। किसको ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा? जो भी ID है अपनी ID वर्क करती है, सर्वर वर्क करता है? सर्वर जो भी है, सर्वर जो वर्क करते फिर ठीक है। तो और n² की कॉम्प्लेक्सिटी को कम करने, इसकी हम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? इसकी n² हो गई आपकी इंसर्शन सॉर्ट की, तो बबल सॉर्ट की क्या होगी? log n होती है इसकी। log n और log n+1 दोनों में क्या डिफरेंस होता है? log n और log n+1 बिग ऑफ होता है ना ये सब। हाँ ठीक है, तो बिग ऑफ log n+1 की में क्या डिफरेंस होता है? अब बेसिक तो ये होता है कि उसमें ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी तो लगती है log n+1 में, और अंदर से डेटा जो होता है ना वो ज़्यादा स्टोर होता है log n+1। आप डेटा अगर ऐसे स्टोर करोगे तो आपकी इसके साथ में स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ेगी। अगर आपने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कम करने की कोशिश की है तो कहीं ना कहीं आप स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा रहे हो। हाँ, तो फिर उसको कैसे मिनिमाइज करोगे? स्पेस को भी मिनिमाइज करना है, बिकॉज उनको बाइनरी जनरेटिव मेथड सोचना पड़ेगा। जैसे कि इस केस में बबल सॉर्ट में बबल दोनों में बता दो आपको जैसा सीखे। एडवांस मेथड्स जो होते हैं वो यूज़ करने पड़ेंगे। जैसे कि आई थिंक कि रिकर्जेंस से भी होता है, तो उसमें एक टोटल्स मेथड होता है, सुना है अपना? हेयर एंड टोटल्स सुना है, वन में पता नहीं। ठीक है। और जैसे क्विक सॉर्ट वगैरह अपन जैसे रिकर्जन वगैरह से करते हैं तो कम कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह लगती है। जैसे जैसे अपन आगे जा मैथमेटिक्स के जो हायर जो भी एल्गोरिथम्स होती है उनसे करेंगे तो सॉर्टिंग कम, मतलब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम लगेगी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी कम लगेगी। ठीक है। DSA में बाइनरी क्या काम में आता है? बाइनरी सर्च एक तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कम कर देता है, जबकि अपन वैसे ये सब चीज़ें सॉर्टिंग वगैरह के लिए काम आती है बेसिकली। और जैसे एलिमेंट फाइंड करना है कि मैं मतलब वेरियस प्रॉब्लम्स को अपन इजीली सॉल्व कर सकते हैं बाइनरी सर्च से। क्यों लगाना चाहिए बाइनरी सर्च? हम तो डायरेक्टली वैसे भी इनके इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं, वो भी तो लगा सकते थे। बाइनरी सर्च लगाने का क्या फ़ायदा हो? मतलब डायरेक्ट ऑपरेटर सॉर्ट करके ऐसे, जैसे मान लो जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है डॉट सॉर्ट करके, हमने वहाँ से सॉर्ट कर लिया। हाँ, PHP का कोई फंक्शन है, हमने सॉर्ट कर लिया। पाइथन का यूज़ कर लिया, जावा का यूज़ कर लिया। ऐसे करने का क्या डिफरेंस है, क्या फ़ायदा है? बाइनरी सर्च से उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कम है ना बाइनरी सर्च। तो आपके हिसाब से जो ये फ्रेमवर्क्स है उन्होंने इसके ऊपर काम नहीं किया होगा ऐसा? मतलब एक सोच के देखो तो एक लैंग्वेज एक PHP जो चल रही है 15-20 साल से, 25 साल से, 30 साल से, उन लोगों ने इस बारे में सोचा ही नहीं होगा कि बाइनरी सर्च अवेलेबल है। नहीं, मतलब बाइनरी सर्च भी अवेलेबल है, और उन लोगों ने क्यों नहीं सोचा होगा ऐसे? आपको लगता है कि मतलब वो लोग ऐसी चीज़ें फॉलो नहीं करते होंगे इंटरनली जो भी वो फंक्शन हमको देते हैं? तो क्या उनके फंक्शंस में ऐसी चीज़ें फॉलो होती होगी? होती होगी। तो फिर हमारा इनको सीखने का क्या फ़ायदा अगर सारी चीज़ें मतलब बाइनरी सर्च से अपन दूसरी चीज़ें भी अपन आसानी सॉल्व कर सकते, जैसे एलिमेंट फाइंड करना हो। मतलब सिर्फ सॉर्टिंग ही यूज़ नहीं आती बाइनरी सर्च के लिए। जैसे जो भी आगे चल के मेजर प्रॉब्लम्स भी होती है उनमें कई बार जो छोटी में से बड़ी प्रॉब्लम्स की छोटी जो प्रॉब्लम्स जो बनती है उनमें बाइनरी सर्च लगाते हैं तो आसानी रहती है। ठीक है, ये बस फैन बना देखिए। अरे ठीक है,
इस एरे के अंदर उसकी बहुत सारी करके लैक्स ऑफ वैल्यूज़ है। हाँ। इसका फोर लूप चलाना है मुझे, क्या मैं चला सकता हूँ क्या? नहीं, क्यों? क्योंकि लैक्स ऑफ वैल्यूज है तो इसमें तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है कि मतलब इसके लिए नहीं चला सकते। तो इस हिसाब से तो हमारा कोई भी प्रोजेक्ट सही नहीं है, मतलब क्योंकि हम फोर ईच इनके बिना तो काम कर ही नहीं सकते। वही रियल टाइम जो प्रोजेक्ट्स होते हैं अपने पास में, जैसे मेरे लाइन में मतलब प्रोजेक्ट तो चलेगा बट इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, तो टाइम अगर होगा तो क्या इशू है? टाइम ज़्यादा चलेगा तो मतलब चाहिए एरर देगा नहीं देगा पहली बात के। नॉर्मल सर्वर में तो देगा एरर। सर्वर का क्या लेना देना इस? जैसे आईडी है जो भी, ये नहीं, अगर उस पर अपन फॉर लूप लाइक डेटा अगर इतने सारे होंगे तो वो इतना सपोर्ट ही नहीं करेगी। क्यों? मतलब VS कोड इतना छोटा थोड़ी है कि वो मतलब ये चीज़ नहीं चला पाया। नहीं, लैक्स ऑफ वैल्यूज, लैक्स ऑफ वैल्यूज़ है तो मतलब मान लो क्या होता है कि जैसे छोटी छोटी एप्लीकेशन, मान लो जोमेटो है, उसके करोड़ों में यूज़र है, तो उस हिसाब से अगर वो कहीं पे फोर लूप चला रहा है तो वो गलत है। मतलब उनके डेटा वगैरह ज़्यादा होंगे, ये डेटा ज़्यादा होंगे तभी तो लैक्स ऑफ वैल्यूज़ है। ये तो सिंपल सी बात है कि जैसे डेटा स्टोर वो ज़्यादा कर सकते हैं क्योंकि उनका डेटा बेस ज़्यादा होता हो। ठीक है, आपका डेटा बेस ठीक है, यहाँ पे क्या होती है आपकी वैल्यूज़ स्टोर। मान लो ये सारी वैल्यूज़ मैंने एक बार में निकाल के इस एरे में पुश कर दी, डेटाबेस का काम तो कहाँ खत्म हो गया? यहीं पे। अब जो भी वैल्यू है हमारी इस $ARR के अंदर पड़ी होगी। फॉर लूप में अच्छा मैं समझ गया क्या फॉर लूप चलना चाहिए कि नहीं चल, फॉर लूप तो चलेगा बट इसके अंदर जो फिर अपन सॉर्टिंग वगैरह, इसमें 1 लाख वैल्यू है। हाँ, मैं इसको अगर फोर लूप से चलाऊंगा तो क्या मुझे एरर देगा नहीं देगा? फॉर लूप से एरर तो नहीं देगा। क्यों? मतलब आइटरेट ही तो करना है नॉर्मल तो। इस हिसाब से किसी ना किसी की कोई ना कोई मेमोरी लिमिट तो होती होगी। अगर आपने DSA के क्वेश्चन किए होंगे तो कहाँ पे सॉल्व किए होंगे? हैकर रैंक में? हाँ नहीं, या लीड कोड पे किए होंगे? हाँ, लीड कोड पे कभी कैसी प्रॉब्लम निकालना है ना, उस पर फोर लूप चला के देखना एक बार, वो आपको एरर देता है या नहीं देता है। आपका एक ना एक टेस्ट केस फेल हो जाएगा, लीड कोड में तो देगा ही, टेस्ट केस फेल हो जाता है। क्यों? कुछ गलत थोड़ी कर रहा है। हैकर रैंक लीड कोड बड़ी वेबसाइट है, फिर भी उनके वहाँ पे उनके सर्वर्स अच्छे हो गए ना आपके हिसाब से तो। हाँ, तो वो लोग क्यों फेल हो गए वहाँ पे? क्यों उसका टेस्ट केस जज नहीं कर पाया इस चीज़ को? क्योंकि फॉर लूप का काम जैसे आइटरेट करने का है तो इससे भी बेटर सोल्यूशन है। सॉल्यूशंस तो है, पर अभी क्या होता है कि मैंने जितनी भी 99% सब कोडिंग देखी है अभी तक अपनी लाइफ में, मैंने सबको फोर लूप लगाते रहना है। हाँ, तो या तो वो लोग सारे गलत है 99%, या 1% जो मैं सोच रहा हूँ वो गलत है। तो जाहिर सी बात है जिनका लेवल ज़्यादा होता है 99% वही लोग सही होंगे, पर फिर भी उनकी कोड्स में एरर आ रही है किसी न किसी चीज़ को लेके। ऐसा क्यों? या तो फोर सही है या फोर लूप गलत है, या फिर कब चलाना चाहिए कब नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि यही तो आपको डेटा DSA से पता चलता है। बाकी बाइनरी सर्च, एक्सर्शन सर्च, बबल सॉर्ट, ये तो जल्दी की बार आपको लगाने को मिलेंगे ही नहीं कभी, क्योंकि अगर इनको लिखने बैठ जाए तो सेपरेट कोडिंग हो जाएगी बिल्कुल, वो तो आप कर नहीं पाओगे ना। डेटा मतलब डेटा स्टोर अच्छी तरीके से करना है। आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, आपकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ये दोनों चीज़ें मैटर करती है ना। जिसमें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हम एक बार हटा भी देते हैं क्योंकि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारे लिए मैटर है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के लिए हमारे पास में SPA होती है, यानी सिंगल पेज एप्लीकेशंस। ठीक है, अगर हमने एक SPA यानी रिएक्ट, नोड, Vue.js इनके ऊपर कुछ बनाया है तो क्या होता है कि जब हम डेटा शो कर रहे हैं वहाँ पे तो हम इतने बड़े सर्वर की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? एक पेज वो डिपेंडेंसी इंजेक्शन पे काम करता है, एक पेज का काम हो गया, उसको डिस्ट्रॉय किया, दूसरा पेज वहाँ पे आ गया, तो सर्वर छोटा होगा चल जाएगा। पर ये जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ये हमेशा रहती है। अब एक फोर लूप है जिससे इतने बड़े एरे में से डेटा निकाला, तो वो क्या करेगा? सॉर्ट करने की कोशिश करेगा इसको, या फिर इसको इटरेट करने की कोशिश करेगा, इसका कोई इंस्टेंस किसी ऑब्जेक्ट में सेव होगा, तो वहाँ पर वो फोर लूप सही है या गलत है? और अगर गलत है तो आपके हिसाब से सही तरीका क्या है? लैक्स ऑफ होंगे तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी, जैसे आपने बोला है। इसको सही तरीका इस तरह से मतलब अपन इन फॉर लूप्स को डिफरेंट पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं।
तो चंक हाँ, चंक में ब्रेक कर के फिर डेटा फोर लूप तो एरर नहीं देगा। चलो अगर आपने चंक कर दिए, पर कितने चंक बन होंगे? आपको क्या पता है इसमें कितना डेटा है? मान लो इसके अंदर 10 लाख डेटा है, तो पहले तो आपको एरे की लेंथ चेक करनी पड़ेगी, है ना। इसमें 10 लाख डेटा है, फिर आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपकी लिमिट क्या है, आपकी फोर लूप की गीगाबाइट लिमिट क्या है, आपकी फाइल राइट लिमिट क्या है। मान लो आपको पता चल गया आपकी लिमिट है 10,000, पहली बात तो आपको ये पता करना पड़ेगा 10,000 लिमिट कैसे निकालूंगा मैं, है ना। फिर उसके बाद में अगर आपने 10,000 कर दिया और उसके चंक्स बना लिए, पर कभी आपका सर्वर स्लो है, कभी आपका स्पेस स्लो है, तो उस टाइम पर भी एरर दे देगा, तो आपके चंक्स भी कभी ऑप्टिमम काम नहीं करेंगे इस हिसाब से। तो भाई या तो ये हो कि आप हमेशा यही मान के चलो कि चाहे कितनी लिमिट होगा तो 1000 का ही चंक बनाना, और उस हिसाब से इटरेशन करोगे तो आपकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पता नहीं क्या बन जाएगी। 1 लाख के अगर मैं 1,000 का भाग दूँ तो कभी 10,000 से ज़्यादा आपके पास में एरेज वहाँ अवेलेबल होंगे, उनको चंक करना है आपको हर बार, तो वो भी काम नहीं करेगा। जावास्क्रिप्ट की नॉलेज है आपको? लेट वेयर और फास्ट में क्या डिफरेंस होता है? जैसे जब लैट होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो चेंज हो सकती है, जैसे और वेर की जो वैल्यू है वो मतलब कांस्टेंट की तो वैल्यू कांस्टेंट रहती है, और वेर की वैल्यू मतलब वेर की वैल्यू भी चेंज नहीं कर सकते अपन। जैसे लेट को वेर को वापस से जैसे लेट वेर ए इक्वल्स टू 57 है, तो वेर ए को अपन वापस से असाइन कर सकते हैं, बट लेट में ऐसा नहीं होता। जैसे और जैसे जो शेडोइंग होती है उसमें लेट से शेडोइंग हो सकती है, और लेट शेडोइंग का मतलब क्या होता है? जैसे कोई ग्लोबल स्कोप में है, जैसे वेयर है ग्लोबल में ए इज इक्वल्स टू 57 है ना, तो कोई ब्लॉक बना ना, तो उस ब्लॉक में अगर लेट की एक ही वैल्यू लेट करके अगर 4 कर दिए और उधर ही ब्लॉक में उसको अपन ने कंसोल डॉट लॉग से अपन ने प्रिंट करवा दिया, तो मतलब एक ही वैल्यू इधर अपन ऊपर, तो अगर कंसोल करेंगे तो इधर अलग आएगी उधर अलग आएगी, तो उससे शेडोइंग कहता है। ठीक है। तो होस्टिंग क्या होती है? होस्टिंग जैसे अपन जब भी कोई प्रोसेस एक्सिक्यूट करते हैं तो एक विंडो होती है, तो एक प्रिपरेशन होती है, एक एग्जीक्यूशन होती है। जो प्रिपरेशन में जैसे अलग अलग, जैसे वेर ए आया और फंक्शन आया कोई, और वेर जैसे लेट भी आया, तो उसमें है ना मतलब इन उसको एग्जीक्यूशन से ऊपर एक विंडो बनी आती है जिसके ऊपर सारे जैसे एक ए और बी जो भी वेयर वगैरह है वो सारे स्टोर हो जाते हैं, जिससे क्या है। ठीक है। तो ऊपर ही आना था कुछ आई फील कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है ना, और आप सीखना चाहते हैं, एक पर्सपेक्टिव हो सकता है, क्योंकि जो भी आपका अभी करंट स्टैंडर्ड है उसमें मैं आपको कुछ पे नहीं कर सकता, कुछ भी पे नहीं कर सकता है ना उसमें, ना स्टाइफंड ना कुछ भी इंटर्नशिप, बिकॉज ऑफ दैट कि अगर मुझे आपको कुछ सिखाना है तो ज़ीरो से सिखाना है ना। तो अगर आप मान के चलो आपको यहाँ पे सीखना है, तो आप कितने मंथ हमारे पास में बिना पे के काम कर सकते? Like I can learn anything under 3 months. 3 months में आपको लगता है कि आप 3 मंथ्स में अच्छे से सीख लोगे, है ना चीज़ें? तो 3 मंथ्स बाद ही मैं आपका पे आउट शुरू करूँगा यहाँ में, मतलब जो भी मैं आपको पे कर सकता हूँ वट एवर इट इज़। मे बी हमारा स्टार्टिंग होता है 7 to 8,000, ठीक है, ये हमारी बेसिक होती है। मैं आपको एक बार लाइक एज लाइक वो आपको क्लियर कर रहा हूँ सारी चीज़ें। मान लो मैं आपको 8,000 रुपये देता हूँ, है ना, फिर आपका 6 मंथ बाद में आपकी परफॉर्मेंस काउंट होगी, कौन इस 3 मंथ से नहीं जहाँ से आपका पे शुरू हुआ है, तो 6 मंथ बाद में आपकी परफॉर्मेंस काउंट हुई, जो भी आपकी परफॉर्मेंस होगी उसके अकॉर्डिंग हो सकता है आपकी सैलरी 15 से 25 के बीच में कुछ भी आ सकती है। नो मैटर वॉट इट इज़, मोस्टली 15 ही होती है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस बंदा होता है तो इतनी हो जाती है। तो आपको क्या